Hello class, good morning. Today we will do, there is a one system of linear inequality is given, and we will find the common feasible region of these two linear inequality. Yesterday we have learned how to draw graphically in 2D plane any linear inequality, how to draw on a 2D plane. Today there are the two or more than two linear inequality are given and we have to draw them. ठीक है, तो क्लास देखिए, पहले आप इसको सेम ग्राफ के ऊपर सेम वर्किंग इज सेम एज वी हैव डिस्कस यस्टरडे. Working is same. Okay, there is only one change is there. Here the more than one linear inequalities are given and we have to draw them on a same graph paper. Okay, and after this we will find the answer will be the common region, and what is that we will see here. So class, there are the two lines, x more than or equal to 3, y more than or equal to 2. Okay, तो क्लास as discussed yesterday, हम पहले इसको डिस्कस यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे. So the line is 1 2 3 4 and it is -1 -2 -3 -1 -2 and -3. This is y 1 2 3. Okay, it is y and y dash, x dash and x. 2D plane. So first I'll draw. First step is x is equal to 3. X is equal to 3. So this is the line x is equal to 3. I draw this line here. It is line representing x is equal to 3. Equal sign is there. So the complete line will be drawn on a straight line. Okay, it will not dotted. The next line is y more than or equal to 2. So the step is first draw the line y is equal to 2. So where is the line? So this is the y is equal to 2. Okay, so there are the two lines. So I'll go with a different color. X is equal to 3. First we should complete the first part. X is equal to 3 and x more than or equal to 3 is there. So shading कैसे हो क्लास होगा? Shading is away from origin. This is the shading for x more than and equal to 3. This is the first answer. Second, we have to draw the next line y more than and equal to 2. First I draw the y is equal to 2. So class, this line is y is equal to 2 and the equal is y is more than and equal to 2. So the shading will be upside of origin. Now class, you see this is the common region where the black and red both colors are coinciding. This is the answer for both the inequalities. Okay, it is x is more than and equal to 3 and that red shading is representing y more than and equal to 2. So class, this is the final answer. Okay, we can extend this line up to this line, right? This is the final answer. As in this way, we will draw some other question. The way is same for all the question. Just only means what the thing we do for one line on the same plane, and that same thing we will do with some other linear inequality on the same graph. जो भी इसका कॉमन रीजन होते हैं क्लास, यहाँ पर दो कलर्स का कॉमन रीजन मिला आपको, ये पोर्शन मिल रहा है. सो दिस इज द आंसर. बस आपको इस तरह से ग्राफिकली हर एक लीनियर इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस करना है ग्राफिक. ओके क्लास, सो क्लास दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Class, now see question number 2. 3x plus 2y less than or equal to 12, y more than 1 and y more than 2 and x more than 1. Okay, there are the three linear equations. So first step is 3x plus 2y is equal to 12 and the points are x comma 0 and 0 comma y. Okay, So y is 0, then x is 4 comma 0
and when y is 0 it is 6. Okay, this is for this line, it is already solved. So now draw this line x and y axis 4 0 0 6. So 1 2 3 and 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 6 and so on. Origin. So this 4 0 and 0 6 class, this line will be okay. This line will be straight because the equal sign is there, and tell whether it is true or false. So 3x plus 2y less than and equal to 12. 0 3 2 0 less than and equal to 12. 0 less than and equal to 12. It is true. So the shading will be toward the origin. This is the first line, class. Okay. Now see the next line. The next line is x more than or equal to 1. This is a line x is equal to 1. X is equal to 1. It is mentioned here x more than or equal to 1. So shading to right side. This is the shading. This is the line y is more than or equal to 1. Now from the next it is has finished. Y more than or equal to 2. Okay, so where can we draw y more than or equal to 2? This is the y is equal to 2. Okay, and the y more than or equal to 2. So the shading to the upside. So class, now observe the common region for red, blue and black color. This is somewhat the common region for the three color, right? So this is the required solution. This is the required feasible region for all three inequalities. Okay. So actually इस region को आपको close नहीं करना, just leave it as. आपको खाली बस different color से आप different graph paper पर pencil कलर मोर एप्रोप्रिएट है, आप इसको यूज करें, ठीक है ना। तो वहां से आप उसे शेडिंग डिफरेंट कलर में देना है, ठीक है। तो ये क्लास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नाउ क्लास नेक्स्ट प्रॉब्लम 3x plus 4y less than or equal 16. ओके, तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x plus 4y is equal to 60. Take the 2 point x comma 0 and 0 comma y. Same process will be continue. It is 0 60. क्लास हो जाएगा आपका 20 comma 0 and 0 comma y x 0 आप लेंगे तो y आपका आएगा 15. ठीक है, these are the 2 point 20 0 0 15 and इसको हम प्लॉट कर लेते हैं क्लास पहले। क्लास देखिए आपको इसमें 1 2 3 5 10 यहाँ पर स्केलिंग करने का रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आपको यहाँ पर 20 0 0 15 प्लॉट करना है। अब बेटर वे ये है कि आप इसको 5 10 15 20 इसको आप प्लॉट कर दें, ठीक है, तो आपका स्केल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बट जैसे कि आप 5 10 15 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें देखिए आप हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या मिल रही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x plus 3y is equal to 30. x, 0 और 0, y फाइंड कर लीजिए। इट इज 30, 0 एंड 0, 10, ठीक है। तो इसमें आपको 30 तक जाना है, तो आपने 25 एंड दिस इज 30, क्लियर हो गया, ठीक है।
अच्छा, ये x मोर देन एंड इक्वल टू 0 क्लास है। ये क्लास क्या है? ये आपका है x मोर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y मोर देन एंड इक्वल टू 0 मींस इट इज एक्सप्रेसिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। x मोर देन एंड इक्वल टू 0, y मोर देन एंड इक्वल टू 0, इन दोनों को जब आप इंक्लूड करेंगे तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट विल कम, ठीक। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। आपको ये दो लाइनें प्लॉट करना है। आपने पॉइंट फाइंड कर लिए 20, अब आपको y एक्सिस पर 15 तक आप जा रहे हैं, तो आप 5, 10, 15, तो 20, 0, 0, 15, 20, 0, 0, 15, दिस इज द फर्स्ट लाइन। एंड ट्रू फॉल्स क्लास देख लीजिए इसमें 3, 0 प्लस 4, 0 less than or equal 60, 0 less than or equal 60, this is condition is true. It is x plus 3y more than or equal 30, 0 plus 30, 0 less than or equal 30, 0, it is also true. प्लस इसकी जो शेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा टुवर्ड द ओरिजिन। First thing has done, and the next is 30, 0 and 10, 0. Class this line will be plot। क्या प्लान हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, शेडिंग टुवर्ड द ओरिजिन होगा। Okay, but class for this two line y is more than or equal to 0 and x is more than or equal to 0. So for this one मैंने क्या बोला, the common region is only first quadrant। तो इसकी जो क्लास जो आपका जो लास्ट में जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लॉट करेंगे उसके लिए आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा, मतलब आपको जो कॉमन रीजन आपको मिलेगा वो सिर्फ क्लास ये मिलेगा। जो कॉमन रीजन क्लास होगा वो ये आपका ये होगा सिर्फ, जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा ये, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और रेड एंड ब्लैक में जो 4 यहाँ पर लाइंस हैं, 4 लाइंस का जो कॉमन रीजन मिलेगा क्लास वो आपको ये मिलेगा, ये आपका जो कॉमन पार्ट मिलेगा, दिस इज द कॉमन रीजन फॉर ऑल दीज 4 लाइंस। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर खाली इतना ही पार्ट जो है वो आप लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन आगे एक्सटेंड हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है, लाइन आगे एक्सटेंड होगा, बट जो कॉमन रीजन मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। दिस इज द आंसर क्लास। क्लास क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको 4 लाइंस गिवन है, 5 लाइंस यहाँ पर है हमारे पास है, ठीक है। क्लास ये दोनों चीजें एक्सप्रेस कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x मोर देन एंड इक्वल टू 0, y मोर देन, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब जब पहले हम 2 लाइंस को हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, इट इज इक्वल टू 150 x, 0, 0, y, 0, क्लास ये आपका आ जाएगा 50 एंड 0, y विल बी 75, ओके। एंड नेक्स्ट लाइन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, x 0, 0y 80, 0 and next is 0, y is 20, okay, it is y is equal to 50। तो हम इसको क्लास यहाँ पर 80 है, 75 है, हम 20 के डिफरेंस में जाते हैं, ठीक है। तो 20, 40, 60, 80 एंड 100, -20 तो कोई कोऑर्डिनेट क्लास है ही नहीं, ठीक है। 20, 40, 60, -20, -40 and -60, it is the origin class। The first line 50, 0 and 0, 75, 50 and 0, क्लास 50 यहाँ पर 50 and 0 क्लास यहाँ पर हो गई है, ठीक है ना। 50 and 0 60 के बीच में, 0 and 75 आपको और परेशान करना पड़ेगा,
0 and 80 प्लस समवेयर 75 यहाँ पर होगा, 70 थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन है, हम लोग क्या ट्रू एंड फॉल्स फाइंड कर लें यहाँ पर। 3 0 2 0 less than or equal 50, 0 is 50, the answer is true. It is 0 plus 4 into 0 less than or equal to 80, 0 80, it is also condition is true. So shading toward the origin, but it is only in the first quadrant because इन दोनों का जो हमारा x more than 0 y more than 0 से खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही आना पड़ेगा। हम जैसे मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, आप शेडिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जो रीजन सबका कॉमन होगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो आप जरूरी ऐसा नहीं कि आप खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही में बनाएं, वो तो अंडरस्टूड हो जाएगा जब हमारी शेडिंग होगी। शेडिंग हमको जो कॉमन शेडिंग होती है, कॉमन शेडिंग हमको सजेस्ट करेगी कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट पॉइंट है 80 0 and 0 and 20। It is the point 0 20 and it is 80, 0। क्लास लाइन बनेगा आपका, लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्लास बस कलर आप डिफरेंट करेंगे, हर लाइन के लिए आप कलर जो है वो डिफरेंट यूज करें। तो इट इज ऑल्सो ट्रू टुवर्ड द ओरिजिन। क्लास इन दोनों का कॉमन रीजन आपको ये मिल गया, ठीक है, यहां तक मेरा क्लास, ठीक है। यहां पर लाइन आपकी कट हो रही है और x is the next line is x less than and equal to 50, ठीक है। तो 15 क्लास यहां पर होगा और तो ये क्लास है आपका x is equal to 50, लेस देन एंड इक्वल है क्लास, x लेस है, तो लेस देन है तो आपका इसकी शेडिंग होगी वो उधर होगी ना, टुवर्ड द ओरिजिन होगी। अब इसको चेक करना है ट्रू फॉल्स, मैंने आपको कल बताया था लास्ट हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो इसको आप चेक कैसे भी कर सकते हैं, 0.y प्लस x, अगर आप इसमें 0,0 प्लेस कर रहे हैं तो 0.0 प्लस 0 एंड लेस देन और इक्वल 50, सो इट इज ट्रू। ट्रू आ रहा है, ट्रू मीन्स टुवर्ड द ओरिजिन, टुवर्ड द ओरिजिन। तो हम सजेस्ट ऐसे कर रहे थे आपको x लेस देन 15, या आप ओरिजिन की तरफ आ जाइए, टुवर्ड द ओरिजिन, ठीक है। तो और क्लास जो आपकी लास्ट की 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। x मोर देन एंड इक्वल टू 0, क्लास ये आपको लाइन सजेस्ट करेगा इस साइड की तरफ, ये है आपका x मोर देन एंड इक्वल टू 0, y मोर देन एंड इक्वल टू 0, ये आपको अब x की अब डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा y मोर देन एंड इक्वल टू 0। अच्छा क्लास जो दोनों का जो इन 5 इनइक्वालिटीज जो आपका कॉमन रीजन मिल रहा है क्लास, वो आपको सिर्फ ये मिल रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉमन रीजन ऑफ ऑल थ्रीज। दिस इज द, ये क्लास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन फॉर ऑल दीज 5 लाइन, जिसमें अब इसके अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट जैसे क्लास यहां पर आएगा 1,1 1,2 1,3, अब ये जो लाइंस होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट इन सारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके क्लास, दिस इज द फाइनल आंसर। Now class, I take one simple problem of miscellaneous exercise. This question is saying is that here the solution is kept between 68 Fahrenheit to 77 Fahrenheit. What is the range of temperature in degrees Celsius? We have to find out if the relation between F and C is given there. Okay. So class, यहाँ पर जो इसमें आपको C पर फाइंड करना है और बहुत सा सिंपल कैलकुलेशन है ये। आपके ने फ़ारेनहाइट प्लेस किया 77 to 68. Put the value of F is here 68, 9/5 C plus 32 less than is equal to 77. ओके, तो क्लास अब यहां पर आप क्या करेंगे, अब आपको C फाइंड करना है, ठीक है। इट इज लेस देन,
अब यहाँ 32 है, आपको सी फाइंड करना, तो आप पहले आप कर दीजिए -32, तो आप 68 माइनस 32, 9/5 सी, 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32. It is 6 and 3, 9/5 C, and this is 5 and 4. Clear? अब क्लास में आपको C फाइंड करना है, 9/5 है, आप 5/9 से मल्टीप्लाई, 5/9 करेंगे तो ये वानिश हो जाएगा, तो 68 इंटू 5/9, 5/9 and 45 into 5/9. It is 4 5 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आपको सी आ जाएगा, ठीक है। इट इज डिग्री 20 डिग्री एंड इट इज 5 5 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रेंज ऑफ सी फ्रॉम 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। Now class C, question number 12. Class, it seems is quite confusing, but it's very simple problem. class पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए यहाँ पर बोरिक एसिड्स के दो सॉल्यूशंस, वन इज 1 of 2%, वन इज 8%, ठीक है। 8% 2% मीनिंग क्या है, मतलब बोरिक एसिड्स में 2% एसिड है और 98% कोई भी आपका डाइल्यूट वाटर या कुछ भी आप, ठीक है ना। 8% ऑफ बोरिक एसिड में 8% मतलब ये तो जनरल मीनिंग में बता रहा हूँ, उसका कोई क्वेश्चन कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर है सॉल्यूशन ऑफ 8% ऑफ बोरिक एसिड, और मैं आपको पहले बता दूं कि इफ यू हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, मतलब बोरिक एसिड टोटल आपको दिया गया 640 लीटर, ओके। एंड वी आर एडिंग हम 640 लीटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम x लीटर ऐड करेंगे 2% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। और x क्या है, हमको फाइंड करना है हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% ऑफ सॉल्यूशन विल हैव टू बी ऐड, हमको 2% बोरिक एसिड कितना ऐड करना है ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके। प्लस क्वेश्चन ये आप पहले समझ लीजिए, जैसे कि 8% हमारे पास है 640, ठीक, हमने 2% ऐड किया x लीटर, हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आपका हो गया 640 प्लस x, ये आपका हो गया रिजल्टेंट, ओके। ये हमारी रिक्वायर्ड चीज है, क्लियर। अब अपने कंडीशन पर आ जाए। कंडीशन स्टेट दैट सॉल्यूशन ऑफ 8% ऑफ बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूट बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड, मतलब 8% में एसिड ज्यादा है, 2% में एसिड कम है, ठीक है। बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड solution to it, the resultant mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% of solution, how many liter of 2% of solution will have to be added? ठीक, तो क्लास क्वेश्चन ये है कि जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है, अब इसका जो इसका रिजल्टेंट होगा वो जो रिजल्ट आपका वो 640 प्लस x होगा, ठीक है। और आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, आप 8% ऑफ बोरिक एसिड में, तो मतलब कि हम 640, देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो ये होगा 8% ऑफ 640 लीटर, हमने क्या ऐड किया, हमने इसमें ऐड किया 2% ऑफ x लीटर, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। 2% सॉल्यूशन आपने हाउ मेनी लीटर, हमने x लीटर लिया, हमने दोनों को ऐड किया। अब ये जो एडिशन आ रहा है ये किसकी रेंज के बीच में, ये दो चीजों के बीच में रेंज में, इट इज मोर देन 4% ऑफ रिजल्टेंट, कितना रिजल्टेंट 640 प्लस x, मतलब ये आपका मोर देन है 4% of 640 plus x and less than 6% of 640 plus x। क्लास ये हमारी रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब पहले हम इन दोनों को ले लें, फिर हम इन दोनों को ले लें, हम इससे एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिससे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके क्लास।
तो पहले आप देखिए यहाँ प्लस, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज है। जब आप परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये इस तरह से हो जाएगा 640 प्लस एक्स अपॉन 100 लेस देन 8 अपॉन 100 ऑफ 640, मतलब मल्टीपल ऑफ 640 प्लस 2 अपॉन 100 इंटू एक्स लेस देन 6 अपॉन 100 इंटू 640 प्लस एक्स। आप पहले 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। So now the value is 4 into 640 plus x less than 8 into 640 plus 2x less than 6 into 640 plus x plus। अब हमको इजी हो गया हमारे लिए। अब हम इन दोनों को यूज करेंगे, फिर अब इन दोनों को यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्लास फर्स्ट हम क्या लेंगे, 4 640 प्लस x लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x, इससे आप एक्स फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट हम दूसरे वाली इक्वेशन से फाइंड करेंगे, इससे 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। ओके, अब क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 4 4 16 1 and 25 and it is 4x less than 8 into 640, 8 4 is 32 and 3 5.20 plus 2x, 4x minus 2x and 5120 minus 2560। क्लास ये इसका डबल ही होगा क्योंकि 4 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो 2560 and it is 2x। x is 2 से इसको आप 2 1 2 2 2 8 and 0, ठीक है ना। x more than 1280। क्लास इधर आ जाइए। Multiple of this one is coming 5120 plus 2x and 6 times 6 4 24 and 38 0 plus 6x। Okay, it is 6x minus 2x, and it is 5120 minus 3840, 5120 3840 0 8 and 0 2 and 4 1 1280 1280 and it is 4x। the x is 1280 upon 4, 3s are 2s are and 0, ठीक है। क्लास अब इन दोनों का कंबाइन करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे x मोर देन 320 लेस देन 1280 लीटर्स एंड लीटर। तो जो आप 22% ऑफ सॉल्यूशन जो ऐड करेंगे, बोरिक एसिड आप ऐड करेंगे, उसकी जो क्लास जो रेंज होगी, दैट रेंज इज लाइंग बिटवीन 320 to 1280। क्लास दिस इज द फाइनल आंसर। 1s are 2s are 80, ठीक है क्लास। ओके, दिस इज द आंसर क्लास।